Everyone, welcome back to my channel NCERT Masterclass. Today we are going to take up the question and answers of the chapter Electricity, Circuits and their Components, which is the chapter 3 of class 7 science. Now let's start the question answers. Question number 1. Choose the incorrect statement. A switch is the source of electric current in a circuit. A switch helps to complete or break the circuit. A switch helps us to use electricity as per our requirement. When the switch is in off position, there is an air gap between the terminal. तो पहली जो स्टेटमेंट है वो देखो, a switch is source of electric current in a circuit. सर्किट में जो स्विच है वो एक सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट का. तो दिस स्टेटमेंट इज़ क्या मतलब ये है कि जो सर्किट है उसको इलेक्ट्रिक करंट स्विच से मिलता है. तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो सर्किट में मिलता है वो इलेक्ट्रिकल सेल या बैटरी से मिलता है. अ स्विच हेल्प टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट. एक स्विच की हेल्प से हम किसी भी सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं या we can complete the circuit. That is absolutely true. So this one is a true statement. A switch help us to use electricity as per our requirement. This is also a correct statement, क्योंकि आपके घरों में भी लाइट देखो, जब आपको लाइट की ज़रूरत नहीं होती आप स्विच ऑफ कर देते हो. तो स्विचेस क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि जब हमें यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी की तब हम उसको यूज़ करें. When the switch is in off position, there is an air gap between its terminal. This is also true. So सबसे जो भी incorrect statement है, हमें इसमें incorrect statement बतानी है. तो ये फर्स्ट वाली है, switch is the source of electric current in a circuit. Now you know it very well. The source of electric current होता है वो है बैटरी या इलेक्ट्रिक सेल. Okay, so how will you write the answer for it? Let me show you. You are going to answer it this way. Answer 1 is incorrect. This first one is incorrect. Okay, this is how you are going to answer. Now coming to the next question. Observe the figure 3.16. With which material should be connected between the ends A and B so that the lamp will not glow. तो हमें ये वाला एक पूरा सर्किट देखना है जिसमें एक बल्ब लगी हुई है, एक इलेक्ट्रिकल सेल है. ये वाला टर्मिनल तो इस बल्ब के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये टर्मिनल ओपन है. अब इसके बीच में हमें कौन सा मटेरियल रखना चाहिए जिससे कि ये बल्ब ना जले. तो हमें कोई भी ऐसा मटेरियल रखना चाहिए जिससे कि ये सर्किट कंप्लीट ना हो पाए. दैट मीन्स आपने पढ़ा था लास्ट में चैप्टर के कि वाटर कंडक्टर्स एंड वाटर इंसुलेटर्स. तो इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल होते हैं विच डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट. सो कोई भी इंसुलेटर अगर हम यहाँ रख देंगे, जैसे कि रबर है, प्लास्टिक है, पेपर है, वुड है, कोई भी ऐसी मटेरियल जो इन सब चीज़ों से बनी हुई है, तो ये करंट पास नहीं होगा और ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा. Now coming to the answer, how we are going to write the answer for it. Answer 2. Any insulator can be connected between A and B. Materials like rubber, plastic, glass, wood, paper are insulator. They do not allow current to flow, so the lamp will not glow. So is that understood to all of you? So this is how you are going to write the answer number 2. Now coming back to the question number 3. So the question number 3 is in figure 3.17, if the filament of one of the lamp is broken. ये दो लैम्प्स हैं, इसमें से किसी एक का फिलामेंट ब्रोकन है. विल द अदर ग्लो जस्टिफाई योर आंसर. तो आपको ये बताना है कि दूसरा भी ग्लो करेगा कि नहीं. कोई भी एक का फिलामेंट इज नॉट देयर. यू हैव टू जस्टिफाई द आंसर. नाउ सी यू कैन सी हियर द cells are or the battery are there and the current will start flowing in this wire. एंड मान लो किसी भी एक का फिलामेंट अगर ब्रोकन है तो क्या होगा कि इस पूरा करंट यहाँ तक नहीं आएगा. देन व्हाट विल हैपन, द लैम्प विल, नन ऑफ द लैम्प्स विल ग्लो, क्योंकि एक का तो फिलामेंट टूटा हुआ है और दूसरे से करंट पास नहीं हो पाएगा. सो कोई भी लैम्प नहीं चलेगा. ओके, सो नाउ वी विल गो टू द आंसर दैट हाउ यू आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन. नो द अदर
lamp will not glow. If the filament is broken, it breaks the electrical circuit and the current cannot flow through it. So the lamp will not glow. Okay, now coming to the fourth question. Let's read the fourth question. A student forgot to remove the insulator covering from the connecting wires while making a circuit. If the lamp and the cell are working properly, will the lamp glow? अब देखो, एक स्टूडेंट ने एक सर्किट बनाया और उसने उसमें जो वायर कनेक्ट करी है उसका जो इंसुलेटर जो ऊपर कवर लगा होता है वो निकालना वो भूल गया है. तो अगर मान लो वो भूल गया है या उसने नहीं निकाला है और उसका लैम्प यानी बल्ब भी एकदम सही है और उसका सेल भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो आप ये बताओ कि क्या लैम्प ग्लो करेगा? द आंसर विल बी नो, द लैम्प विल नॉट ग्लो, क्योंकि उसने वो इंसुलेटर कवरिंग नहीं निकाली है. द करंट विल नॉट बी एबल टू फ्लो थ्रू द वायर. So we will write the answer for it. We are going to write it like this. No, the lamp will not glow because the plastic or the rubber covering on the wire is an insulator which will prevent electric current from flowing through the wire and making the circuit incomplete. So circuit will be incomplete क्योंकि वो prevent करेगा electric current को pass होने के लिए. Therefore the lamp will not glow. Now coming to the fifth question. Question number 5 is draw a circuit diagram for a simple torch using symbols for electric components. तो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स ऑलरेडी सारे पढ़े हुए हैं और उसके बेसिस पे आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है ऑफ अ सिंपल टॉर्च. नाउ I will draw it here and show you. Now here you see that जब भी आप सभी ने एक टॉर्च तो सभी के घरों में होती है, आपने देखा भी होगा, यहाँ पे एक बल्ब लगी हुई होती है टॉर्च के अंदर. इसके अलावा आप ऐसे देखो तो यहाँ पे एक स्विच लगी होती है. अगर हम ऐसी टॉर्च को जस्ट एक मेंटली हम सोचे कि कैसी होती है टॉर्च, इस तरीके की होती है और इसके अंदर सेल होते हैं, इजंट इट? 2 सेल है. चलो हमने ये मान लिया कि दिस इज़ एन इलेक्ट्रिकल टॉर्च. नाउ आई हैव टू मेक अ सर्किट फॉर इट. अब देखो यहाँ पे बल्ब है, तो बल्ब कैसे बनता है? हमने वो सिंबल्स जो पढ़े हुए हैं, सब बल्ब बनेगा इस तरीके से गोल और एक क्रॉस लग जाएगा. उसके बाद वायर है जिससे कि ये कनेक्ट होएगा, तो ये एक वायर है और इधर क्या आते हैं? स्विच है, इजंट इट? तो हम इधर भी एक स्विच बनाएंगे. तो एक यहाँ पे जस्ट वी विल पुट अ राउंड एंड देन वी आर गोइंग टू मेक अ स्विच. ये बन गई हमारी स्विच. अब इसके अंदर हमें ये दिख रहे हैं 2 इलेक्ट्रिक सेल, 2 मिला के कॉम्बिनेशन में बैटरी बन जाते हैं. तो हमने एक छोटी लाइन नेगेटिव पॉजिटिव और इसके साथ एक सेल और जोड़ दी, नेगेटिव और पॉजिटिव. तो एक बैटरी बन गई. आप ऐसे सेल कह सकते हो या बैटरी कह सकते हो. अगर सिंगल सेल यूज़ किया तो वो सेल होगा, और क्योंकि इस टॉर्च मैंने दो सेल बना दिए तो हमने ये 2 सेल्स बना दी. अब यहाँ से एक वायर जाएगी और इट इज़ गोइंग टू गेट कनेक्टेड टू दिस. सो दिस विल बी द सर्किट डायग्राम फॉर द टॉर्च. यहाँ पे ये तो हो जाएगा आपका स्विच. दिस विल बी सेल और बैटरी. दिस विल बी द bulb and this will be the wire. और आप सोचो तो इसमें पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव ये है नेगेटिव टर्मिनल. यहाँ से करंट फ्लो करेगा और ये स्विच जब क्लोज होएगा तो फिर करंट पास होके द बल्ब विल ग्लो. सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू मेक अ सर्किट डायग्राम फॉर अ टॉर्च. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 5th के बाद हम आते हैं 6th क्वेश्चन पे. इन फिगर 3.8, ये है फिगर 3.8 और इसमें इफ S2 इज इन ऑन पोजिशन, ये एक सर्किट डायग्राम है जिसके अंदर कि ये है हमारा बैटरी और दिस इज अ मेन स्विच. इसको हमेशा ये ध्यान में रखो कि ये
इस सर्किट डायग्राम का मेन स्विच है और इसी बेसिस पे हम अपने आंसर्स को लिखेंगे। तो दिस इज द मेन स्विच, S1 इज इन ऑफ पोजिशन, ये ऑफ पोजिशन पे यानी इसी तरीके से ओपन है, सॉरी S1 इज इन ऑफ पोजिशन एंड S2 इज इन ऑन पोजिशन। ऑन पोजिशन मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो S2 हमारा ऑन पोजिशन में है पर S1 हमारा ऑफ पोजिशन में है। विच लैम्प विल ग्लो, देखो इसमें मेन स्विच ही आप देखोगे ऑफ पोजिशन पे है। नन ऑफ द लैम्प विल ग्लो, फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, नन ऑफ द लैम्प, कोई भी लैम्प नहीं जलेगा। ठीक है, अब हम अगले में आते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है इफ S2 इज इन ऑफ पोजिशन, ये वाला जो S2 है ये ऑफ पोजिशन में है और S1 इज इन ऑन पोजिशन, ये जो S1 है ये ऑन पोजिशन पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ ऑन पोजिशन पे है। विच लैम्प विल ग्लो, देखो अब की बार क्या हो रहा है, ये जो हमारा मेन स्विच है ये ऑन है और ये वाला ऑफ है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से आएगा। तो दिस in this case what will happen, lamp L1 will glow और L2 क्योंकि ये S2 स्विच इसको कंट्रोल कर रहा है इसलिए, और S2 ऑफ है तो ये L2 नहीं ग्लो करेगा। सो दैट वन इज क्लियर, L1 is going to glow, the first lamp will glow. If S2 and S1 both are in on position, which lamp will glow, अगर मान लो ये S1 और S2 दोनों के दोनों ऑन पोजीशन पे, दोनों के दोनों ऑन पोजीशन में है, तो क्या होगा, ये लैम्प भी जलेगा और ये लैम्प भी जलेगा, तो बोथ L1 एंड L2 विल ग्लो। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले सिचुएशन में। इफ बोथ S1 एंड S2 आर इन ऑफ पोजीशन, जैसे कि ये पिक्चर है, S1 भी ऑफ में है, S2 भी ऑफ में, विच लैम्प विल ग्लो, नन ऑफ द लैम्प विल ग्लो, none of the lamp। ठीक है, तो how we are going to write, just see sixth question now। S1 सबसे पहले यहाँ पर आपको, इसलिए मैंने पहली ही लाइन ऐसे लिख दी है कि आपको इस बात का सबसे पहले हमेशा दिमाग में ध्यान रखना है कि S1 इज द, स्पेलिंग का थोड़ा सा मेन स्विच, ये ध्यान रखो। उसके बाद इफ S2 इज in on position and S1 is in off position, then both the lamps L1 and L2 lamp will not glow because the main switch S1 is in off position, breaking the main circuit। जहाँ से सर्किट शुरू हो रही है वहीं से इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप हो गई है। ओके, अब उसका जो सेकेंड पार्ट है, इफ S1 is on, the main switch is on, that means S2 is off, then only L1 will glow। तो वो पहला वाला बल्ब जैसे एक्सप्लेन किया था मैंने वही ग्लो करेगा, S2 वाला ऑफ है इसलिए वो दूसरा ग्लो नहीं करेगा। बिकॉज S1 इज ऑन कंप्लीटिंग द सर्किट फॉर L1, तो L1 के लिए सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है, सो वो जलेगी। L2 विल नॉट ग्लो बिकॉज S2 इज ऑफ, ब्रेकिंग द सर्किट फॉर L2, तो L2 के लिए सर्किट ब्रेक हो जा रहा है इसलिए वो नहीं जलेगी। थर्ड वाले केस में क्या होगा, बोथ L1 एंड L2 लैम्प विल ग्लो, क्यों, क्योंकि S1 और S2 दोनों के दोनों स्विच ऑन पोजीशन पे है। ठीक है, दोनों के दोनों ऑन पोजीशन पे रहेंगे तो दोनों ग्लो करेंगे। और जो लास्ट वाला केस है उसमें क्या हो रहा है कि S1 एंड S2 बोथ आर इन ऑफ पोजीशन, सो व्हाट विल हैपन, नन ऑफ द लैम्प विल ग्लो। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू आंसर 6। नाउ कमिंग टू द 7th क्वेश्चन। Vidyut has made the circuit as shown in figure 3.19. Even after closing the circuit, the lamp does not glow. अब उसने ये इस तरीके से एक सर्किट बनाया और उसमें उसने बल्ब लगाया, इलेक्ट्रिक सेल लगाया, एवरीथिंग, स्विच इज ऑल्सो देयर। अब इसने इसको इस तरीके से क्लोज भी कर दिया पर जो लैम्प है वो नहीं जल रहा। What can be the possible reason? List as many as possible reasons you can for this faulty operation. What will you do to find out why the lamp did not glow?
देखो अब कुछ भी हो सकता है, ये पूरा का पूरा सर्किट है ये नहीं वो कर रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो लैंप है वो ख़राब है। कई बार ये लैंप फ्यूज़ होगा, जो हमने पहले भी आपको दिखाया हुआ है फ्यूज। सो इट कुड बी अ फॉल्टी बल्ब। देखो इस वाले बल्ब में जैसे अगर वो बल्ब का बीच का फिलामेंट ब्रोकन होगा तो बल्ब कैसी होगी, फ्यूज्ड होगी, तो फिर वो नहीं ग्लो करेगी। एक रीज़न तो ये हो सकता है कि बल्ब फ्यूज़ है। नाउ द सेकेंड रीज़न कुड बी दैट ये जो सेल है, इलेक्ट्रिकल सेल है जो यूज़ की जा रही है, वो एग्जॉस्टेड हो पूरी, उसमें एनर्जी ना हो, पुरानी सेल हो। तीसरा ये हो सकता है कि उसने उसकी जो वायर है उसके इंसुलेटर्स को नहीं प्रॉपरली यहाँ पे जो इसने कनेक्ट किया, इंसुलेटर्स रिमूव नहीं किए होंगे। ये एक रीज़न हो सकता है कि वो जो बल्ब है ये इसमें ग्लो नहीं कर रहा है। Now while writing the answer, I have written the answer for it and I will explain you by reading the answer. Now देखो आंसर नंबर 7, पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है? द फिलामेंट माइट बी ब्रोकन, बताया था मैंने। द बैटरी यूज्ड इन द सर्किट माइट बी एग्जॉस्टेड, वो ख़त्म हो गई होगी। द लैम्प होल्डर माइट बी डैमेज्ड, वो जो लैम्प होल्डर है जिसके अंदर की वो बल्ब को सेट किया है, दैट लैम्प होल्डर माइट बी डैमेज्ड। इसके द प्लास्टिक कवरिंग ऑफ द वायर माइट नॉट बी रिमूव्ड, ये भी हो सकता है कि उसका इंसुलेटर जो ऊपर लगा हुआ है प्लास्टिक का कवरिंग वायर के ऊपर, उसको भी प्रॉपरली नहीं निकाला है, जिसकी वजह से वो, ये पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं कि दैट बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग। नाउ टू फाइंड आउट वाई द लैम्प डिड नॉट ग्लो, अब हमें ये सारे तो कारण हो सकते हैं, अब हमें एग्जैक्टली पता करना है कि भाई प्रॉब्लम किधर है। तो हम क्या करेंगे, पहले बात, आई विल चेक इफ़ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज़ ब्रोकन बाय लुकिंग एट इट क्लोजली। पहले मैं क्या करूँगी, बल्ब लूँगी और उसके अंदर की फिलामेंट को देखूँगी, ये ब्रोकन तो नहीं है बीच में से। अगर ब्रोकन होगी कहीं कहीं से, यहाँ से बीच में से ब्रोकन होगी, तो यानी ये फ्यूज बल्ब है, तो बल्ब इज़ द रीजन। And suppose if bulb is not the reason, then I will check if the battery is working by connecting it to another device. तो क्या करेंगे, वो जो इलेक्ट्रिकल सेल है उसको किसी और डिवाइस से कनेक्ट करके देखेंगे। अगर मान लो वो उसके साथ अच्छे से फंक्शन कर रहा है, लेकिन हमारा जो हमने बनाया उसके साथ नहीं कनेक्ट कर रहा है, यानी कि द प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स, द सेल इज ऑल्सो ओके। आई विल चेक द बल्ब होल्डर इफ़ इट इज़ डैमेज बाय यूजिंग अनदर होल्डर। तो क्या करेंगे, उसके जो बल्ब का होल्डर है वो ही चेंज करके देखेंगे, हो सकता है होल्डर में कुछ डैमेज हो और वो होल्डर चेंज करते ही वो बल्ब चलने लग जाए। आई विल चेक द एंड्स ऑफ द वायर इफ़ इट्स प्लास्टिक कवरिंग इज़ रिमूव्ड और नॉट। तो और ये जो वायर है जहाँ जहाँ पर जहाँ कनेक्ट किया हुआ है वायर्स को, उस जगह पे देखेंगे कि उसका इंसुलेटर जो है, ऊपर की जो रबड़ की कवरिंग है वो निकाली गई है कि नहीं प्रॉपरली। सो ये सारी चीज़ें चेक करके हम वी कैन कम टू द पॉइंट दैट वेयर इज़ द प्रॉब्लम। सो दीज ऑल आर सम ऑफ द things which we are going to check and find out. Now coming to the 8th question. In the figure 3.20, in which case the lamp will not glow? In which case the lamp will not glow? You have to find out and say when the switch is closed. अब देखो हम ए वाला देख लेते हैं, पहला देखते हैं। अब इसमें ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ से ऐसे जा रहे हैं। अब स्विच क्लोज कर देंगे, अब इसका स्विच क्लोज कर दिया हमने। ओके, नाउ द करंट विल फ्लो फ्रॉम हियर। तो इस केस में आप देखेंगे कि देयर इज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड द नेगेटिव टर्मिनल। द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम इट, क्योंकि स्विच क्लोज्ड है। सारे स्विच क्लोज्ड पोजीशन में ही हमें देखने ना, स्विच क्लोज्ड है तो फिर करंट यहाँ से आराम से पास होगा। और ये इनकैंडिसेंट लैम्प है तो इसमें कोई टर्मिनल्स नहीं होते हैं। आप पहले भी हमने लेसन जब पढ़ा है तो इसमें कोई पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल इस टाइप का कुछ नहीं होता। सो करंट विल फ्लो एंड come to the negative, so the current will flow, there is no break in the circuit, so this lamp will glow. तो A वाला
लैम्प ग्लो करेगा इस सर्किट का। अब हम आते हैं इस सर्किट पे। अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है और स्विच इज इन क्लोज्ड पोजीशन एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। इट इज टोल्ड दैट एवरीवेयर द स्विच इज इन क्लोज्ड पोजीशन। अब ये स्विच क्लोज पोजीशन पे है। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना शुरू करेगी, इसके फिलामेंट से पास होगी और फिर ये इधर आएगी, फिर इधर आएगी, इधर आएगी और इस तरीके से द सर्किट विल बी क्लोज क्योंकि स्विच यहाँ से बंद है। सो दिस लैम्प विल ऑल्सो ग्लो, सेकेंड वाला लैम्प भी ग्लो करेगा। अब आते हैं हम थर्ड लैम्प पे। अब ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ से स्विच को हमने क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है। अब यहाँ से करंट बनेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, रिमेंबर इट। और जब हम एलईडी लैम्प देखते हैं ना तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये इस तरफ होता है और नेगेटिव टर्मिनल ये वाला होता है, जिस तरह ऐसे लाइन बनी हुई है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब आप जब ये करंट इधर से पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ इस तरफ को जाएगा तो यहाँ पे कौन सा टर्मिनल मिल गया उसको? नेगेटिव टर्मिनल। और हम सबको मालूम है कि जो एलईडी बल्ब होती है उसके अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है लंबी वाली वायर और नेगेटिव टर्मिनल होता है छोटी वाली वायर। और इसका सिंबल में जब हम देखते हैं तो ये जो ट्राइंगल का ये जो रीजन है ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो होगा क्या कि करंट जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से बट नेचुरली इट विल नॉट पास थ्रू दिस वायर। सो दिस LED will not glow because the circuit will not get complete. So C वाला will not glow. अब आते हैं हम D वाले पे। D वाले में ये है पॉजिटिव टर्मिनल क्योंकि ये लाइन बड़ी है और ये है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना। अब ये क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल से करंट और ये क्लोज हो गया, ये क्लोज्ड है, स्विच दिस स्विच इज क्लोज्ड। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट जाना शुरू करेगा और यहाँ पे इसको क्या मिलेगा? पॉजिटिव टर्मिनल। एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल तो करंट आराम से पास हो जाएगा और जब ये पास होके इधर से और ये सर्किट पूरा स्विच भी इसको क्लोज मिलेगा तो द सर्किट विल गेट कंप्लीट। सो दिस वन ऑल्सो विल ग्लो, दिस वन ऑल्सो विल ग्लो, ओनली दिस वन विल नॉट ग्लो। Okay, so C1 will not glow. Is that clear for the 8th one? Now coming to the question number 9. Suppose the positive and the negative symbol cannot be read on a battery. Suggest a method to identify the two terminals of this battery. अब अगर मान लो किसी बैटरी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं दिया हुआ है, ये दिया ही नहीं हुआ है, इसमें से वायर्स निकल रही हैं, दिया ही नहीं हुआ है, बट आपको पता करना है कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है। अब हमने पढ़ा है ऑलरेडी इन द चैप्टर कि जो एलईडी बल्ब्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। और जब हम किसी भी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एलईडी बल्ब, देन ओनली इट क्लोज। अब आप क्या कर सकते हो, इसको टेस्ट करने के लिए इसकी एक वायर को इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाओ और एक, जैसे कि अगर आपके पास एक सेल है जिसका आपको पता करना है, बैटरी है जिसका पता करना है कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा है, इस पर नहीं लिखा हुआ है, तो इसकी एक वायर इस पर टच कराओ और एक वायर इस पर टच कराओ। अगर मान लो ये वाली सेल जो है अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो दिस विल ग्लो, ठीक है, और अगर ये नेगेटिव होगा तो इट विल नॉट ग्लो। सो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये वाला अगर ग्लो हो गया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, नाउ हाउ विल यू आंसर दिस, दैट आई विल रीड एंड टेल यू। Take a LED, it has two terminals, the longer wire is positive terminal and the shorter wire is the negative terminal. Connect the LED to the battery के साथ उसको connect कर दो। If the LED glows then the longer wire of LED is touching the positive terminal of the battery. तो अगर मान लो वो जो LED है वो ग्लो कर गई, इसका मतलब ये हुआ कि जो longer wire है वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को टच कर रहा है।
If the LED does not glow, reverse the connection, and if the bulb glows, you can tell that terminal is positive, which terminal is positive and which is नेगेटिव। तो आप एलईडी जलाकर ये कंफर्म कर सकते हो कि किसी भी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है। ओके, नाउ कमिंग टू द 10th क्वेश्चन। Okay, the question is here. You are given 6 cells marked A, B, C, D, E and F. Some of these are working and some are not. Design an activity to identify which of them are working. अब ये बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, A, B, C, D, E, F इस तरीके से 6 सेल्स दी हुई हैं। आपको उसमें से कुछ सेल्स वर्क कर रही हैं, कुछ सेल्स नहीं कर रही हैं, और आपको ये पता लगानी है कि उसमें से कौन सी सेल्स वर्क कर रही हैं और कौन सी नहीं। तो हमको एक एक्टिविटी डिज़ाइन करनी है। इसमें हम एक नॉर्मल सर्किट बना लेंगे हर एक सेल के साथ और एक बल्ब ग्लो करने की कोशिश करेंगे। जिस भी सेल के साथ वो बल्ब ग्लो करता है दैट मीन्स दैट सेल इज़ वर्किंग, एंड जिस सेल के साथ द बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग दैट मीन्स इट इज़ नॉट वर्किंग। तो आपको इन हेडिंग्स के अंदर वो पूरा का पूरा प्रोसीजर लिखना है। So we are going to see how you are going to write the answer for it. सबसे पहले आपको ये लिखना होगा कि लिस्ट ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड। इसी हेडिंग्स के अंदर सारा आंसर लिखना है। लिस्ट ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड में एक तो बल्ब चाहिए होगा, 2 पीसेस ऑफ वायर, अ लैम्प होल्डर एंड एन इलेक्ट्रिकल टेप। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल टेप चाहिए ताकि आप वायर्स को कनेक्ट कर सको। अब प्रोसीजर क्या होगा, कैसे उसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट अ वायर टू द लैम्प। सबसे पहले उस वायर को कनेक्ट कर दो उस बल्ब के साथ या लैम्प के साथ। कनेक्ट द एंड्स ऑफ द वायर टू द टर्मिनल्स ऑफ ईच सेल 1 by 1। तो जो वायर का एंड है उसको टर्मिनल्स ऑफ सेल्स के साथ कनेक्ट कर दो। अब क्या एक्टिविटी में क्या करना है, इफ़ द लैम्प ग्लोज द सेल इज़ वर्किंग, इफ़ इट डज नॉट ग्लोज द सेल इज़ नॉट वर्किंग। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ ऑल द सेल्स टू आइडेंटिफाई द वर्किंग सेल्स। तो यही चीज़ आप हर एक सेल के अंदर वो जो लैम्प है वो कनेक्ट कर करके आपको लैम्प होल्डर और वायर का एक बना दो आप, और उसके बाद हर सेल को उसके साथ एक 1 by 1 कनेक्ट करके देखो कि वेदर द बल्ब इज ग्लोइंग और नॉट। इन दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई द वर्किंग ऑफ द सेल। नाउ कमिंग टू द 11th क्वेश्चन। An LED requires 2 cells in series to glow. Tanya made the circuit as shown in figure 3.2. Will the lamp glow? If not, draw the wires for correct connection. अब देखो ये एक तान्या ने ये अरेंजमेंट किया है और आप ये बताना है आपको कि क्या ये ग्लो करेगा। सी अगर आप इधर देखते हो तो दिस इज़ एन एलईडी बल्ब। आपको ये पता है कि उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल, करेक्ट। उसके बाद आप देखो ये जो वायर है, ये जो 2 सेल्स है, बैटरी है, इसका यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है। तो अब इसका ये पॉजिटिव एंड है, ये तो हो गया करेक्ट है, पर ये जो कनेक्शन किया है दैट इज़ रॉन्ग। हियर इट शुड बी नेगेटिव, और इधर भी एक नेगेटिव और नेगेटिव। जब भी हम 2 सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव सेल। तो यहाँ पे भी रॉन्ग हो गया है। सो द करेक्ट वे टू ड्रॉ द वायर्स एंड करेक्ट करेक्शन, इसमें ही हम करेक्शन करते हैं कि हमें किस तरीके से बनाना चाहिए। तो इसमें ये जो डायग्राम है, वी आर गोइंग टू मेक द डायग्राम की 2 सेल बना लेंगे हम। एक सेल इस तरीके से होगा जिसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा और नेगेटिव टर्मिनल होगा। ओके, अब एक और सेल बना देते हैं हम, और यहाँ पे इसका पॉजिटिव होगा, यहाँ पे इसका नेगेटिव होगा। ये एक पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा और ये नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा। इन दोनों को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। प्रॉपर वे ऑफ कनेक्टिंग द 2 सेल्स इज, एक का पॉजिटिव होना चाहिए, एक का नेगेटिव होना चाहिए। दिस आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। अब
इसकी दो वायर्स हो जाएंगी हमारी, एक पॉजिटिव टर्म, इस बैटरी, एक बैटरी बन गई और इस बैटरी की दो वायर्स है, एक पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है और नेगेटिव टर्मिनल से निकल रही है। और जो एलईडी है, अब हम यहाँ पे एक, ये हो जाएगी एलईडी की नेगेटिव और ये एलईडी है और इसका पॉजिटिव, ये होगा हमारा पॉजिटिव ऑफ द वायर। So positive terminal of the cell will connect to the positive terminal of the LED and negative terminal of the cell will connect to the negative of the LED. So then it will be a correct circuit. So if not, draw the wires for correct connection. अब हम इसका एक ड्राइंग बना सकते हैं। 11th क्वेश्चन है। So we will write that no, LED bulb will not glow as the positive and the negative terminal of the battery are not connected properly. Correct connection क्या होगा इसका? जैसे मान लो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, यहाँ पे इसका पॉजिटिव है, यहाँ पे इसका नेगेटिव है, तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव होगा इस सेल का, यहाँ पे इसका नेगेटिव होगा। ये दोनों को आपस में हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे और इसकी जो एक यहाँ से वायर निकल रही है और ये नेगेटिव टर्मिनल से वायर निकल रही है, विच विल गो एंड कनेक्ट टू द एलईडी का, ये वाला जो नेगेटिव है ये एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और ये वाला कनेक्ट होगा एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और देन ओनली द bulb will glow. This is the LED bulb and it will glow if the negative terminal of the cell is connected to the negative terminal of the LED bulb and positive terminal of the cell is connected to the positive terminal of LED. So this is the right way to give the answer for answer number 11. With this, the question and answers of the chapter are done, and thank you all for listening to the video, and if you like the video, kindly like and subscribe to my channel.